Now, basic warm up I have already told you, but this is my second lecture, and it is the topic of my lecture is fraction and the decimal. For example, fraction and decimal, we have already studied in the class 6, but it is just in the advanced stage. Now, first, how the fraction is defined. I am just refreshing the mind of the students. Definition: it is a ratio of a number of parts of an object or item to the total number of the parts of an object which was equally divided. A बहुत simple example दिया जाता है. Suppose you consider a pizza, and if pizza is equally divided into 4 parts, so the 1 parts upon 4 becomes the fraction. ये ध्यान रख लीजिएगा. अगर 2 parts किसी को दे रहे हैं तो 2 upon 4 becomes the fraction. 3 दे रहे हैं तो 3 parts become a fraction. And this fraction has 6 types. अब देखिएगा, which I have already told you, but I will not go for every fraction. Proper fraction, when the numerator is less than denominator. Improper fraction, numerator is greater than denominator. And mixed fraction, like fraction, D is the same for all the fraction. Like fraction में denominator सबका same होना चाहिए. Unlike fraction, unit fraction, n is equal to 1 for all the fraction. Numerator should be 1 for all the fraction. Here only we are going to have the 3 most important fraction. What is the important fraction? Proper fraction, when the numerator is less than denominator. Denominator may be different, but numerator can also be different, but less than denominator. अब देखिए, improper fraction where numerator is greater than denominator. Basically, mixed fraction, when you divide the numerator by denominator, it becomes mixed fraction. So the question is generally given in terms of the mixed fraction. So in mixed fraction, any fraction have the different denominator. ये आपको अच्छी तरह से बच्चों को बता देना चाहिए. अब सॉल्व करना है क्वेश्चन based on the fraction, whether it is a sum of proper fraction or sum of mixed fraction. So आपको जो है all the denominator का LCM निकालना बहुत जरूरी है. Why LCM? क्योंकि सभी फ्रैक्शन को आपको जो है बराबर बनाना पड़ेगा. जो I will give you the example like this. अब देखिए, यहां पर आप देखिएगा जो है, in order to solve the addition, subtraction, ascending, descending order or comparison of the fraction, what is important? All fractions should be converted into improper fraction from the mixed fraction. अब ये बच्चे को तो पता होना चाहिए. अच्छा, अब देखिए, I will later on, all improper fractions should be converted into like fraction by using the LCM of all the denominators of all fraction. अब देखिए, after LCM, all fractions should be converted into like fraction. वो ऊपर ही वाला, by multiplying numerator and denominator by appropriate natural number obtained by dividing the LCM by denominator of given fraction. इसका एग्जाम्पल देखा, मैं समझा रहा हूं आपको जो है. अब देखिएगा जो है, अब यहां पर जो है मैं सब नेचुरल नंबर का मैं जो प्रॉपर्टी है पहले मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. मीनिंग ऑफ ऑफ मतलब और टाइम्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ये भी मैं बता दिया हूं. डिवीजन सिंबल ये होता है. अब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, रिवर्स हो जाता है, इनवर्स हो जाता है. एटलीस्ट द स्टूडेंट शुड नो द टेबल फ्रॉम 0 to 10. उनको जो पता होना चाहिए जो है. अब देखिए, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं जो मैंने कहा था. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी एज शोन इन फिगर. देखिए, पेरीमीटर दिया हुआ है. अब ऑल द डायमेंशन आर इन ए मिक्स फ्रैक्शन 5:1/4. अगर 5:1/4 को उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं करने आ रहा है तो सवाल नहीं कर सकता. ठीक है. अब देखिए, स्टेप क्या है. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी प्लस बी टी प्लस सी है. पेरीमीटर तीनों का सम होता है, ये डिफिनेशन भी पता होना चाहिए. सम हमने कर दिया. फिर देखिए, कन्वर्ट ऑल इनटू, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया. और हमने कहा था कि डिनोमिनेटर सबका अलग अलग हो सकता है. सेम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग होगा तो उसको सेम करना पड़ेगा. कैसे सेम करेंगे? अब देखिए, एलसीएम ले लिया गया, इसका 12 आ गया. इसका मतलब ये 12 एलसीएम आ गया तो सबका डिनोमिनेटर 12 होना चाहिए. अब 3, हाउ 3 विल बी 12? अनलेस यू नॉट डिवाइड 12 by 3,
12 हो नहीं सकता। तो 12 इज डिवाइडेड बाई 3 बिकम्स 4। सो 4 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और 4 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए हियर 4 है, हाउ विल मेक 12? तो 12 को 4 से डिवाइड करो 3 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई 3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सिमिलरली हियर, अब इस केस में जो है डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया है 12। देन क्वेश्चन इज बिकम वेरी सिंपल। अब टेबल क्यों होना चाहिए भाई 10 तक याद? अब देखिए, अब 13 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जब तक 4 का टेबल नहीं है आप 52 नहीं ले सकते हैं। 21 3 63, 3 का टेबल आना चाहिए। अगेन 63 ऐड करिए और आपका ये आपका पेरीमीटर हो गया। जो तो डिनोमिनेटर सेम है तो सब न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, या सब न्यूमरेटर को जहां ऐड करना ऐड करिए, डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दैट इज as simple as, unless you know all these things which I have told you earlier. अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दिया गया है। अब यहां पर देखिए एक आपका जो मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको भी आप जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, अरे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो पहले कन्वर्ट करने से क्या हुआ है, अब स्टेप 1 कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए 1/3 नो प्रॉब्लम, 2/9 दिस इज 7/6। अब 396 का एलसीएम लीजिए। यहां पर हमने बता दिया है लेकिन लड़कों को एलसीएम पता होना चाहिए। तो जब तक 2 से 9 तक टेबल नहीं याद है तो एलसीएम क्या निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। अब देखिए टू मेक ऑल द डिनोमिनेटर 18, अब देखिएगा डिवाइड 18/3 6 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए। अगेन डिवाइड 18/9, 2 मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाई 2, हियर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाई 3, तो सबका ये 18 हो गया। अब वेरी सिंपल हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब उन लड़कों को जैसे मैंने बताया कि नेचुरल नंबर जो है राइट हैंड साइड में इंक्रीजिंग होता है, आई टोल्ड यू। अब देखिए इसमें 6 सबसे छोटा है, 4 अगेन बिगर है, 21 बिगर है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे पहले 4 आएगा, देन 6 आएगा, देन ये आएगा, ठीक है ना। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर दिया है और हमने लिख दिया है कि 4/6 इज लेस देन इतना, लेस देन इतना। और 4/18 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, अब 2/9 का कर रहा है। 6/18 किसको मल्टीप्लाई किया, इसको। अब अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर पता है तो डिसेंडिंग ऑर्डर तो अपने आप समझ में आ जाएगा। हार्ड टू लो, इसको उलट कर दीजिए, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए। ऐसे देखिए, अनलेस यू आर नॉट नोइंग द वार्म अप थिंग्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू, वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो लड़कों को जो पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसके माता पिता चाहते हैं, चाहे लड़का चाहता है, अब माता पिता लड़का चाहता है, तो ये सब चीज लड़के को पता होना चाहिए, वेरी क्लियर कट। अब देखिए सॉल्व दिस एडिशन, सब दिया हुआ है। एग्जाम्पल मैं एक दे रहा हूं, इसका एग्जाम्पल ले रहा, कन्वर्ट दिस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कन्वर्ट कर दिया गया। कहां कन्वर्ट कर दिया गया, अब देखिए क्या हुआ, 2:1/4, 9/4, 3/2। और 4 और 2 का एलसीएम बड़े आराम से निकल जाएगा। अब ये 4 तो है ही है, ये 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, 9 + 6 15/4। एडिशन इज सॉल्व। सब्सट्रैक्शन रहेगा तो सब्सट्रैक्शन विल बी डन। A fissure frame is in shape of square of the side this। अब कह रहा है, अब वर्ड्स प्रॉब्लम है कि एक पिक्चर का फ्रेम है, उसका साइड ये है, कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर। अब स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए, सब देखिए आ जाएगा। अब देखिए फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग्स, यहां करना है, इसको कन्वर्ट करिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 4 जा 20 + 21/4, और 21/4 में 21 में अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं जानता है और 5 में 4 का मल्टीप्लिकेशन नहीं जानना चाहता है तो नहीं कर सकता है, क्योंकि फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, ये ऑल दिस थिंग्स शुड बी नोन, तब होगा। नहीं तो बहुत 1 घंटा पंखा देखता ही रह जाएगा, सवाल नहीं कर पाएगा। बिकॉज ऑफ दैट आई हैव टोल्ड ऑल दिस थिंग्स। अब उसी तरह देखिए, ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन। 1/2 ऑफ 36 मीन्स 1/2 इंटू 36। अब 36 में अगर 2 को उसको भागी नहीं देने आ रहा है, हाउ विल सॉल्व, नो कैन नॉट बी सॉल्व।
अब देखिए कास्ट ऑफ 1 kg पोटैटो इज 19:1/4। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं बताएगा, अब 4 का टेबल नहीं है तो 9 × 4 नहीं निकाल सकता है, ना +1 कर सकता है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ दिस टोमेटो। हिंट, अगर 1 kg में इतना है तो इतने kg का क्या होगा, इसको अधिक होगा। भाई 1 kg का कॉस्ट पता है तो ज्यादा kg का मल्टीप्लाई कर दे, सिंपल। ये वर्ड्स प्रॉब्लम है जो है। अब यहां पर थोड़ा टिपिकल है, कॉस्ट ऑफ इतना kg, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इज 300 रुपीज। यहां पर यूनिटरी फंक्शन लगाना पड़ेगा जो है। यूनिटरी फंक्शन मतलब मैं बताऊंगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg, कैसे, अब देखिए सीज, अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 4 4 जा 16, 19/4, 19/4 kg कॉस्ट इज 300 रुपीज। तो 1 kg कॉस्ट क्या होगा, कम होगा तो डिवाइड हो जाएगा। अगर आप डिवीजन जानते हैं तो डिवीजन एक इनटू में कन्वर्ट होता है तो ये रिवर्स हो जाएगा, सिंपल निकल जाएगा। सिमिलरली ऑल दिस थिंग्स देयर इज नो प्रॉब्लम। अब डेसिमल में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है जो है। डेसिमल मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के मीन्स में अपने आंसर दे रखते हैं। बट if you are going to divide numerator by denominator, if remainder is not 0, ध्यान सुनिएगा, then it should go for the decimal। और मैं बता रहा हूं, देखिएगा जो है होल नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका ये सब मैं बता चुका हूं। इसमें कोई मिक्स फ्रैक्शन ये बता चुका हूं। ये देखिए, ये देखिए होल नंबर होता है और ये क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो होल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन को मिलाकर के ही मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। और होल नंबर को डेसिमल में लिखने के लिए होल नंबर लिख दिए और पॉइंट लगा के जितना 0 लिखना लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे नेचुरल नंबर में 0 लेफ्ट हैंड साइड में लिखे, वो वही नंबर रहेगा। सिमिलरली 3 है तो 3.00 कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट 1/4 को डिवाइड करना है तो आपको एक डेसिमल का करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो मैं बता रहा हूं। देखिए लॉन्ग मेथड यूज करिए। 1 यहां पर दीजिए, डिविडेंड हो गया, न्यूमरेटर डिविडेंड होता है, ये डिवीजन हो गया, डिनोमिनेटर डिवीजन होता है। अब यहां पर चलिए, अब देखिए 0 का कितना इंपॉर्टेंस है। 1 is less than 4, 1 is less than 4, but if you multiply 4 by 0 it becomes 0 which is less than 1। तो 0 बार ले जाइए क्वोशंट, और 0 4 जा 0, ठीक है, और इसको माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ये तो सबको पता है। अब यही से डेसिमल का रोल स्टार्ट होता है कि 1 के बाद डेसिमल दीजिए, यहाँ ऊपर डेसिमल, डिविडेंड में भी डेसिमल दीजिए, क्वोशंट में भी डेसिमल दीजिए, और 0 को उतारिए। अब एज सिंपल एज पॉसिबल, अब 0 को उतारिए, 10 हो गया। 4 का टेबल पढ़िए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 बार नहीं जाएगा तो 2 बार रह जाइए तो 10 हो गया। यहाँ 2 आ गया, फिर 0 बढ़ाकर 0 कितना हो लिख सकते हैं, 0 उतारिए। अब ये 20 हो गया, 4 का टेबल पड़े, 4 5 या 20, ये सब बहुत तोता की तरह याद होना चाहिए। तो 20/20 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 1/4 इज इक्वल टू हो गया आपका 0.25। दैट मीन्स रिमाइंडर 0 जब आता है तो टर्मिनेटिंग इसको डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और 0 कभी नहीं आता, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, अभी फिलहाल तो यहीं पर रखिए जो है। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 1/4, 3.1/4, थोड़ा मतलब मैंने यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया है, तो 3.1/4.25। अब इसको ऐसे कर सकते हैं, ध्यान सुनेगा जो मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल चीज मैं बताने जा रहा हूँ जो उस समय ध्यान नहीं है। 3 + 1/4 हो गया। अब देखिए आई हैव टोल्ड यू कि 3 के बाद जो है 0 0 लगाएंगे तो 3 ही रहेगा। क्यों 2 0 लगाया हूं, क्योंकि 1/4 जो है आपका ये इस तरह से है, 0.25 है। अब इसको ऐड करिए, थोड़ा मैं यहां पर वो कर रहा हूं। अब ये 3.00 आ गया यहाँ पर और 0.25 आ गया, तो 5 2 और अब यहाँ पर पॉइंट में लगा दिया था, और कुछ नहीं, लोगों को आ रहा चलो 3 के बाद पॉइंट लगा दो, और ये इस तरह से सब हो जाएगा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप ध्यान रखिएगा। 4 चीज यहां पर बताया हूं।
प्रॉपर फ्रैक्शन बताया हूं, सभी प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में सब जगह 1 है। 1/10 का मतलब होता है, 1/10 का मतलब होता है सिंबल टी होता है, 1/10 होता है, 0.1 होता है। और फर्स्ट पोजीशन कहां से होता है? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से होता है। ध्यान रख लीजिएगा, दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होता है। 100 को स्मॉल एच लिखते हैं, 1/100 0.01। सेकेंड पोजीशन होता है फ्रॉम राइट हैंड, डेसिमल के राइट हैंड साइड में। उसी तरह से ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन होता है। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड करके मैंने दिखा दिया है। अगर पहले वाली चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है जो है। तो ये देखिए, और अगर लड़के को नहीं समझ में आ रहा है, जरा ध्यान सुनिएगा, तो अगर ये 10 है तो दशमलव के बाद कोई जीरो नहीं है, 2 है तो 1 जीरो है, 3 जीरो है तो 2 जीरो है, 4 जीरो है तो 3 जीरो है। ये तो याद कर ले। अब ये भी नहीं याद कर पाएगा तो मैथ पढ़ना छोड़ दे। अब देखिए, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कन्वर्जन देखिए यहाँ पर मीटर में भी होगा, क्लास 6 में पढ़ा गया है। केजी, लेंथ, वॉल्यूम, सबका एक ही कन्वर्जन टेबल है। वो मैं यहाँ पर दिया हूं, थोड़ा अपने हिसाब से दिया हूं, उसको समझ लीजिएगा। ये जंप मैंने लिखा है, के का मतलब हमेशा 1000 होता है। एक तो ये समझिए, केजी हो, केम हो, किलोमीटर हो 1000 मीटर, केजी हो 1000 ग्राम, केल हो 1000 लीटर। ये आप ध्यान में रख के चलिए जो है। अब देखिए, लेकिन इसके बीच में और भी रीडिंग होता है। ये हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। उसी तरह से वेट का भी आएगा और कैपेसिटी का भी आएगा। बात समझ में आ गया? अब हमने एक नया चीज इसमें शुरू किया है, ये जंप वाला शुरू किया है। देखिए, यहां से यहां जंप करेंगे तो 10 को मल्टीप्लाई करिए, सेकेंड जंप अगेन 10 को मल्टीप्लाई करिए। अगर किलो से अगर डेसी बन जाते तो 10 × 10 करिए, और किलो से मीटर में जाते तो 10 × 10 × 10। इधर से जा रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करिए 10 का। अब देखिए, उसी तरह से यहां पे भी जाएंगे, यहां से यहां भी 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां भी 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां भी 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जितना जंप होगा उतनी 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैंड साइड, जरा देखिएगा, फ्रॉम हायर यूनिट टू लोअर यूनिट। जहां भी हायर यूनिट से लोअर स्टेप पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। उसी तरह से उतनी बार 10 का मल्टीप्लाई करा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको डेका से यहां पर जाना है तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, तो 2 बार 10 का मल्टीप्लाई होगा। आई हैव गिवन एग्जाम्पल हियर, जस्ट सी। अब देखिए, फ्रॉम लोअर टू हायर जाएंगे तो क्या होगा? आपको ऐसे होगा, फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप, इधर मैंने बढ़ाया नहीं है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब इसमें लोअर से हायर जाए तो 1/10 का मल्टीप्लाई करना होगा। सपोज कर लिए आप मिलीमीटर से डेसीमीटर जाते हैं तो 1/10 × 1/10 करना पड़ेगा। सो ये लोअर टू हायर, फ्रॉम राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं देख लेते हैं, अब आइए डेसिमल में क्या करते हैं। डेसिमल कंसिस्ट ऑफ होल पार्ट और डेसिमल पार्ट। तो होल पार्ट के लिए फार्मूला लग जाएगा, ठीक है, लेकिन डेसिमल पार्ट में अलग होता है। देखिए, अब कैसे लिखते हैं? 1234, ये होल पार्ट है। और डेसिमल पार्ट में जो मैं पहले बताया था, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, यहां पर जो है इसको TH, TH, TTH बोलते हैं डेसिमल के बाद। अब देखिए, इसको T बोलेंगे, H बोलेंगे, TH बोलेंगे, TTH बोलेंगे, लेकिन क्लास 7 में 3 डेसिमल तक है, इसीलिए हमने TH तक ही इसको लिया है। तो इसीलिए इसको होल पार्ट बोलेंगे, इसको डेसिमल पार्ट बोलेंगे। और T का मतलब क्या है? 0.1, आप समझ रहे हो। H का मतलब क्या है? 0.01, TH का मतलब 0.001। ये ध्यान रखना पड़ी बात है जो। अब देखिए, अब एग्जाम्पल दिया है, अब ये कह रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म इसका लिखना है। ध्यान सुनिएगा। तो उसके लिए क्या है कि आपको इसको प्लेस बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। केवल प्लेस, प्लेस वैल्यू नहीं बोलते, इसको प्लेस बोलते हैं सभी। एक्चुअली हम नर्सरी से बच्चों को, नर्सरी क्लास 1 से बच्चों को बता रहे हैं कि प्लेस का मतलब क्या है? 1 स्टेंस, बस। सेकंड, थर्ड में 1 स्टेंस 100,000। उसी तरह से डेसिमल का प्लेस है। अब ये लिखने के बाद आप बहुत सिंपल हो जाएगा। देखिए, 1 क्या है? 1000 है,
ठीक है। 2 क्या है, 100 है। अब वो मीटर लिखा है, शायद कहीं मीटर लिखा होगा, अगर यहाँ मीटर लिखा होगा तो ये आप इसको लिखना कोई बात नहीं। और T क्या है, 3/10 मीटर है। O क्या है, O1s। अब देखिए, अब यहां पर 5 पर जाएंगे तो 5 का स्मॉल t रहेगा, 1 का स्मॉल h रहेगा और 2 का th रहेगा। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये वर्ड्स में एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब देखिए लिखेंगे कैसे, देखिए 1000 मीटर हो गया, 200 मीटर, 30 मीटर, 4 मीटर और 5 × 1/10 मीटर, 1 × 100 मीटर, और ये अंदर सिंपल वे। लेकिन अगर आप जो है बच्चों को शुरू से नहीं बताएंगे प्लेस का मतलब, तो IIT में जाने का कोई मतलब है नहीं, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जा सकता, 10th भी पास होना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये प्लेस बताना बहुत जरूरी है, समझ गए। अब इसी को आप जो है मैंने जैसे चाहे उसे लिख सकते हैं जो है। अब एग्जाम्पल 2, मल्टीप्लाई दिस बाई 10, और 2 मेथड इसके हैं, क्या है। अब देखिए ये इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल चीजें हैं। अब ये 34 है तो ये O हो गया, T H लिख दीजिए और यहाँ पर T लिख दीजिए। इसमें क्या है कि इसको 1 चुनना है तो इसको 1 शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो 345.0 हो जाएगा। 1 0 है तो 1 शिफ्ट, 2 0 है तो 2 शिफ्ट, 3 0 है तो 3 शिफ्ट, तो ये आपका ये हो गया। अब देखिए 5T × 10 = 5O, तो देखिए O के नीचे आ गया। 4 × 10 40, तो 40 तो T के नीचे आ गया। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दिया है, तो शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल इन राइट हैंड साइड इक्वल टू द नंबर ऑफ 0 विद 1। अब सेकेंड मेथड देखिए, अब इसको इंटू इसे करना है तो इसको आप फ्रैक्शन में बदलिए, क्योंकि एवरी डेसिमल हैज ए डिनोमिनेटर ऑफ 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको लाइक डेसिमल बनाने के लिए यहां पर दशमलव करके 0 कर दीजिए, फिर 344/10 आ जाएगा, 10 कट जाएगा। सेकंड मेथड सिंपल, लेकिन वार्म अप इज वेरी स्मॉल पैरामीटर शुड बी नोन बाय द स्टूडेंट्स, ये ध्यान रख लीजिएगा आप लोग जो। अब वही मैं थोड़ा ये डेसिमल का 100 का मल्टीप्लिकेशन 1000 का मल्टीप्लिकेशन किया हूं। तो अब देखिए 100 में क्या है कि 2 शिफ्ट करना है, T जो है डबल T के ऊपर आ जाएगा। देखिए ये 2 है ना तो TH पर आ जाएगा, 3 आपका H पर आ गया, 7 आपका यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पे आ गया। या कहेंगे 2 शिफ्ट कर जाए तो दशमलव के बाद 7 3 है, दशमलव यहाँ लगा दीजिए। सेम थिंग जो मैंने बताया था, कन्वर्जन ये आप यूज कर लीजिए। उसी तरह 1000 में क्या करिए कि 3 0 है तो HTH है, तो इसको 3 बार शिफ्ट कर लीजिए, या ऐसे कर दीजिए, अगर 3 है तो 1 2 3 दशमलव यहाँ पर लगा दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए राइट हैंड साइड में, और कन्वर्जन ये लगा दीजिए। सेम थिंग अगर आप मल्टीप्लिकेशन डेसिमल के जानते हैं, कोई मेथड अप्लाई, दोनों मेथड जानना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स दिस इज क्विक, समटाइम दिस इज क्विक। समटाइम अगर कहा जाता है कि नहीं आप प्रोडक्ट करिए तो आपको ये बताना पड़ेगा, लेकिन सवाल में कहीं प्रोडक्शन है तो आप ये उसके आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, अब वही सॉल्व वही चीजें हैं जो मैंने दिया है आपको, उसी तरह ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए दिया है जो है, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन सपोज कर लीजिए आपका जो है ये क्वेश्चन दिया गया है इतना करने के लिए, और इसमें ये चीजें हैं, इसका हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल फॉर डी है कि सी है, आई डोंट नो, 25 और 5। चलिए ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन है, डी नहीं होना चाहिए, सी होना चाहिए। स्टेप बाय यूजिंग द सुटेबल मेथड फर्स्ट मल्टीप्लाई बिटवीन 2.5 and 5। अब देखिए 2.5 में मल्टीप्लाई 5 का किए हैं, सिंपल वे है, ये मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लायर है, ये 12.5 आ जाएगा, और फिर 12.5 आ गया तो बाकी 0.25 से मल्टीप्लाई उसी तरह कर लीजिए। लेकिन ये जो मेथड मैं बताया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये शुरू में मैं यही अडॉप्ट करता हूँ, किताब में दिया है, लेकिन दिस इज द सिंपलेस्ट। कैसे सिंपलेस्ट है, इसको मल्टीप्लिकेशन करते समय आप भूल जाइए OTS लगा दीजिए। देखिए इसको मानिए O के नीचे है, O का मतलब 1, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको मानिए 10, तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करिए और जोड़िए,
तो डेसिमल का कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो, ये तो मैं इसको कह नहीं सकता हूं वंस, लेकिन माइंड में उसको वंस रखिए, सिंपल मल्टीप्लाई करिए, आप दशमलव काउंट करके रख दीजिए, ठीक है, 1 2 3 डिजिट है, 3 डिजिट यहां कर दीजिए, खत्म मामला, सिंपल। अब देखिए, अब कन्वर्ट द फॉलोइंग। अब आपको जो है, जब तक कन्वर्जन टेबल हमारा याद नहीं होगा, सेंटीमीटर टू मीटर कितने जंप करना है वो आप नहीं कर सकते। 18 सेंटीमीटर मतलब 18 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना होता है 1/10 इंटू 1/10 मीटर, ये रिवर्स टू जंप है, तो 1/100, 1/100 है तो आप देखिए 0.01 हो गया, दशमलव शिफ्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, शिफ्ट कर दीजिए। सिमिलरली ऑल दिस थिंग्स। अब एडिशन में क्या है कि इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करिए। अगर देखिए यहाँ पर 1 डेसिमल है राइट हैंड साइड में, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सबको 2 2 कर दीजिए। अब देखिए ये कैसे हो गया, यहाँ पर एड ऑल दिस थिंग एंड इतना 1 इज डन फॉर यू। क्या दिया गया है कि 0.5 है तो 0.5 जीरो कर दीजिए, और ये 0.0 7.0। अब इसको सिंपल जोड़ दीजिए, फॉरगेट डेसिमल, अब डेसिमल के नीचे डेसिमल कर दीजिए। सबसेक्शन में उसी तरह से जो है, सबसेक्शन ओनली बिटवीन 2 थिंग्स, मिन्यूएंड एंड सबस्टेंड और डिफरेंस। मिन्यूएंड को उसी तरह से रखिए, लेकिन इसमें 12 उसी से करिए। फॉरगेट अबाउट ऑल दिस प्लेस। अगर 0 इज लेस देन 2, यहाँ लीजिए ये भी 0 है, यहाँ लीजिए यहाँ से 1 लीजिए, यहाँ 10 आ गया, 10 में से 9 बचेगा, यहाँ 10 आ गया, यहाँ से 9 बचेगा, यहाँ 10 आ जाए, सिंपल। और दशमलव के नीचे दशमलव कर दीजिए। अगर लाइक फ्रैक्शन है, लाइक डेसिमल है, तो दशमलव के नीचे प्लस में भी आ जाएगा, माइनस में भी आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सेम थिंग। देखिए डिवाइड, अब इसमें भी वही चीज दिया है। अब डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता था, और डिवीजन में लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेगा। आप देख लीजिए। अब देखिए बाई 10, अगर इसको बाई 10 करना है तो वहां कहा इधर शिफ्ट करता था, इसमें इधर शिफ्ट करेगा, तो 5 पॉइंट कहीं आ गया होगा, देखिएगा आपको जो है 5 पॉइंट देखिए 35 आ गया। फिर यहाँ पर 100 है तो मल्टीप्लिकेशन में इधर शिफ्ट करता था, इसमें इधर शिफ्ट गया तो 0.535। सेम थिंग याद हो। और इसको मैं ऑलरेडी शो किया हूं, प्रूव किया हूं कि क्यों करेगा। अगर आ गया कि क्वेश्चन आ गया कि प्लीज डिवाइड दिस बाय लॉन्ग मेथड, तो आपको ये जाना पड़ेगा, ठीक है। अदर मेथड वही मैंने बता दिया, यहां पर कैसे लेफ्ट राइट में शिफ्ट करेगा। लेफ्ट में शिफ्ट करेगा डिवीजन में, राइट में शिफ्ट करेगा मल्टीप्लिकेशन में। अब ये भी देखिए, ये डिवीजन दिया, इस तरह से दिया है, सेम प्रोसेस। लेकिन अब इसमें आपको जो है लाइक दशमलव को पहले हटाना पड़ेगा। कैसे? लाइक फ्रैक्शन बना करके। देखो 1.62, यहाँ पर 2 दशमलव है, यहाँ पर 3 दशमलव है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको 3 करिए। जब लाइक डेसिमल हो गया तो डेसिमल को उड़ा दीजिए, थ्रो डेसिमल। और 009 का मतलब 9 होता है, और यहाँ पर सिंपल आप डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पर 0 आ गया तो क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। और उसके लिए क्या है ये मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार रिपीट कर दिया हूं। अगर 9 से डिवाइड करना तो 9 का टेबल लिख लीजिए। और फिर देखिए यहाँ पर अगर 1 है तो 0 है, तो 9 0 हो जाए, 0 हो जाए। देखो यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, ध्यान से सुन लीजिए। इसको मैं थोड़ा देखिए, गलती सबसे होती है, मतलब ये मत समझिए कि गलती हमसे नहीं होती है, गलती सबसे होती है। लेकिन गलती को मान ले और करेक्शन कर दे तो बेस्ट है। स्टेप 1 में ये हो गया, 0 आ गया स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आपका 1 आ गया। स्टेप 3 में आपका जो 8 आ गया, 0। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये नहीं टर्मिनेट होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग एडिशन होगा। उसका अलग होता है कि कोई कहता है 2 दशमलव तक निकालिए, सम से 3 डेसिमल 4 डेसिमल से अकॉर्डिंगली हैव टू गो। और यहाँ पर देखिए वर्ड्स प्रॉब्लम है। अब ये भी यूनिटरी मेथड लगेगा। ए कार ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर 1.1 लीटर, और कहा कि 1 लीटर में कितना आएगा, तो देखिए इन 1.1 लीटर कार ट्रेवल 16.5 मीटर। अब ये ज्यादा है
तो कम लीटर में क्या होगा, कम होगा तो डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन दिया गया है, आप उसी तरह से यूनिटरी मेथड को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब इन सबों में क्या है कि आपका जो डिफिनीशन पता होना चाहिए। पेरीमीटर का क्या डिफिनीशन होता है, तो 3 इंटू साइड होता है, तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल डिफरेंट तरह के होते हैं वो भी पता होना चाहिए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड्स बराबर होते हैं, 3 इंटू साइड हो गया। क्वेश्चन 8, 9, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ दिस, ब्रेथ इतना, लेंथ 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होना चाहिए। आप सॉल्व कर लीजिए, मजे मजे है। तो you have seen in my second lecture that basic things are known to every students if they want to complete the any engineering test and entrance test. Thank you very much.